سب سے پہلے علیمہ خانم کا جج کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا. وہ آپ کو پتا ہے اپنے کیسز میں ان کو بار بار عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے. ان کے اوپر بھی مقدمے ڈالے ہوئے ہیں احتجاج کرنے کی وجہ سے. تو علیمہ خانم نے جج کو یہ کہا کہ عمران خان نے ہمیں عدلیہ کی آزادی کے لیے پرامن احتجاج کرنے کا کہا تھا. ہم تو آپ کی آزادی کے لیے پرامن احتجاج کر رہے ہیں, آپ ہمیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں. تو اس پہ جج صاحب نے علیمہ خانم سے جاتے ہوئے کہا کہ آپ دعا کریں کہ ہم آزاد ہو جائیں. دعاؤں سے تو آزادی نہیں ملتی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. عدلیہ کو یہ زنجیریں خود توڑنی پڑیں گی, وکلا کو, ججز کو مل کر زنجیریں توڑنی پڑیں گی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں پہنا دی. انہیں جکڑ لیا گیا ہے, انہیں خود چھوٹنا پڑے گا. پاکستان کے لوگ ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہو سکتی ہیں, لیکن خود ہی کرنا پڑے گا. حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ علیمہ خانم بتا رہی ہیں کہ رات کو جو احتجاج ہو رہا تھا اڈیالہ کے بعد جب دھرنا تھا, بعد میں ٹارچر کیا گیا, لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا اور گرفتار بھی کیا گیا. تو زاہد ظہور نامی ایک ایس ایچ او کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے 3 خواتین کو وہاں سے اٹھایا اور ابھی تک ان خواتین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ گاڑیاں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں, کوئی 8 سے زیادہ گاڑیاں انہوں نے اٹھائی. بڑی گاڑی کو چھوڑنے کے لیے پولیس کو 10 لاکھ روپے رشوت لے لیتی ہے, چھوٹی گاڑی کو چھوڑنے کے لیے پولیس کو 5 لاکھ روپے رشوت لے لیتی ہے. اور یہ باتیں علیمہ خانم بتا رہی ہیں. یعنی یہ حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے, اور یہ عدالتوں کی کمزوری ہے. عدالتی احکامات کے باوجود وہ ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, ملاقات ہوتی نہیں ہے. عمران خان کو ڈالا ہوا قید تنہائی میں. اب لگ بھگ عمران خان صاحب کو تقریباً 1.5 ماہ سے زیادہ تو یہ ہو گیا کہ آخری ملاقات ہوئی. 1 ماہ اس سے پہلے والا بھی ہے, وہ بھی ملاقات نہیں ہو. لگ بھگ تقریباً کچھ 2.5 مہینے ہونے والے ہیں, یا 2.5 مہینے سے اوپر ہو گیا کہ عمران خان صاحب قید تنہائی میں, اور انہیں ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی, ان کا بیانیہ باہر نہیں آ رہا. اور یہ سارا کچھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور ان کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جانب سٹریٹ موومنٹ کی جو موبلائزیشن ہے وہ تیز ہونا شروع ہو گئی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیئرلی بتا دوں, جو میرے سننے والے لوگ ہیں نا, ان کو میں ایک کلیئر لائن ڈرا کر دیتا ہوں. سٹریٹ موومنٹ کوئی اور چیز ہے, سٹریٹ موومنٹ کے لیے موبلائزیشن کچھ اور چیز ہے. موبلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ویژولز کریٹ کرتے ہیں, آپ جگہ جگہ جاتے ہیں, جلسے, جلوس, ریلیاں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ موبلائزیشن. سٹریٹ موومنٹ کے لیے موبلائزیشن. لیکن جو سٹریٹ موومنٹ کی پراپر تیاری ہے وہ گلی محلے میں ہر جگہ پہ ہر بندے کی ڈیوٹی, ہر نوجوان کو پتا ہے اس نے کتنے بجے کہاں جانا ہے, کیا ڈیوٹی کرنی ہے, باقاعدہ نام لکھے جاتے ہیں, ٹیلی فون نمبر اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں, ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں, وہ پورا ایک آرگنائز طریقے سے چلتا ہے. وہ ابھی کام شروع نہیں ہوئی, لیکن موبلائزیشن کا کام بہت تیز ہو رہا ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بڑا احتجاج ہوا ہے اور یہ سٹریٹ موومنٹ کے لیے موبلائزیشن کا کام ہو رہا ہے. نیازی صاحب وہاں پہ عمران خان صاحب کے بڑے وفادار ساتھی ہیں, وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر بہت بڑی بڑی ریلیاں نکلی. ناظرین میں تو دیکھ کے, میں نے جو پہلے مناظر دیکھے مجھے لگا شاید یہ خیبر پختونخوا ہے, لیکن بعد میں پتا چلا بلوچستان ہے. تو بلوچستان میں تو بہت بڑا انقلاب تیار ہے. جس طرح کے مناظر میں نے دیکھے, جیسی ریلیاں دیکھی, جیسے لوگوں کے اجتماع دیکھے, ایسے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی ابھی وہاں کر بھی نہیں سکتی. تو بلوچستان سے بھی یہ صورتحال ہے. خیبر پختونخوا میں سٹریٹ موومنٹ کی موبلائزیشن کی ویڈیوز آ رہی ہیں, لگاتار آ رہی ہیں, لیکن جو ٹیکنیکلی سٹریٹ موومنٹ ہوتی ہے اس کی موبلائزیشن تو شروع ہو گئی ہے, لیکن وہ عملی طور پہ بھی گراؤنڈ کے اوپر کام پراپر شروع نہیں ہوا. ناظرین نے ایک سٹیٹمنٹ دیا طاہر اشرفی نے, وہ سٹیٹمنٹ میں یہاں ضرور آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. طاہر اشرفی نے کہا کہ, اور یہ ملاقات کی ہے انہوں نے ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر سے, کبھی یہ آرمی چیف کو مل لیتے ہیں, فیلڈ مارشل کو, کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر کو, کبھی کسی اور کو. تو یہ پاکستان کی فوج نے مولویوں کا ایک جتھا گھیرا ہوا ہے. یہ 14 مولوی ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں. یہ 14-15 یہ 2-3 درجن مولوی ہیں, اور یہ سارے درباری اور سرکاری مولوی ہیں. کبھی وزیر اعظم بلا لیتے ہیں, کبھی عہدے مل جاتے ہیں. تو طاہر اشرفی نے کہا جی کہ قوم اور فوج کے اتحاد سے جنگوں کو جیتا جاتا ہے. خیبر پختونخوا کے عوام فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں خیبر پختونخوا کے عوام کہاں کھڑے ہیں, ذرا وہاں جا کے آپ کو بھی پتا کریں, مولوی صاحب کو پتا چلے کہاں کھڑے ہیں. خیبر پختونخوا کے عوام کئی دہائیوں سے رستے میں کھڑے, کئی دہائیوں سے وہ اپنے گھر ہی نہیں جا پائے, کئی دہائیوں سے وہ خیموں کے اندر اور کیمپوں کے اندر کھڑے. خیبر پختونخوا کے عوام کئی دہائیوں سے ناکوں پہ کھڑے اور جنازوں میں کھڑے. اب خدا کا واسطہ ان کو تھوڑا بیٹھ کے سانس لینے دیں. کب تک آپ نے انہیں کھڑا رکھنا اور کب تک آپ نے ان کا خون بہانا ہے؟ اس کے اوپر یہ خرم ذیشان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, میں یہ ضرور آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. انہوں نے دکھایا کہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کھڑے, اس میں بہنیں بھی کھڑی ہیں, بھائی بھی کھڑے ہیں, اور
लंबी एक लाइन है जिसमें टूटी फूटी पुरानी गाड़ियों के अंदर लुटे पुटे काफले वादी तीरा को छोड़कर आ रहे हैं। इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है जनाब ये बड़ा पैसा बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्मगलर्स हैं। ये इनकी हालत देखें आप। क्या इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुए जो स्मगलर्स हैं उनके पास पैसा ज्यादा है या इनके पास ज्यादा है? इनकी गाड़ियों के टायर तक तो देखें आप, कहीं से फटे हुए हैं, वो पुराने हैं। गाड़ियों की हालत देखें आप, जो किराए की गाड़ियां लेकर उनके ऊपर इनके पास तो प्रॉपर वो बक्से भी नहीं है सामान रखने के लिए, पोटलियों में भर भर के लेकर आ रहे हैं। ऊपर से वो अम्मार सोलंकी का जो आईएसआई वाला अकाउंट है मुबैना तौर पर ये नून लीग वालों ने बताया, और ये आईएसआई के कुछ सहाफी हैं उन्होंने बताया कि ये आईएसआई का ही अकाउंट है। तो वो जो आईएसआई वाला अकाउंट है अम्मार सोलंकी का, वो एक घर के अंदर से सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है और दावा कर रहा है कि ये तालिबान सामान उठा के भाग रहे हैं। और वो जो वहां से टीटीपी के लोग सामान उठा के भाग रहे हैं मुबैना तौर पे अगर तो वो ठीक है तो भाई गर्मियों में उठा के भागे थे। वादी तीरा के अंदर मौसम का आपको पता है इस वक्त क्या है? इस वक्त वहां पे बर्फानी ठंडा मौसम चल रहा है जबरदस्त किस्म का। और ये जो बंदे सामान उठा के भागे हैं रात के वक्त, ये बंदे तो बिल्कुल शलवारों कमीजों में थे, गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए थे उन्होंने। तो आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं, इनके दिमाग में पता नहीं, ऐसा लगता है खोपड़ी में दिमाग है ही नहीं, मोटी खोपड़ी है, समझ नहीं आती इनको कि लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। और मट्टी का घर है भाई, मट्टी का कमरा है, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ किसी ने, और वो भी उसी जगह पे लगाया हुआ कि यहां चोरी हो जाएगी। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें आप। ये इन लोगों की हालत है, ये देख लें आप। खुरम निशान इसके ऊपर लिखते हैं, सेनेटर हैं, कि रावलपिंडी से हेलीकॉप्टरों के जरिए लाया गया पंजाबी जर्नैली लफाफी मीडिया देख ले। एक तो पंजाब से शिकवा करते हैं वो लोग, हम क्या करें, यानी मैं पंजाब में रहता हूं, मुझे तो बहुत तकलीफ है, दुख है इनका। पहले भी आवाज उठाई, अब भी उठा रहे हैं, माजी में भी आवाज उठाने की कीमत चुकाई है। ये लगातार ऐसा नहीं है कि पंजाब खिलाफ है, पंजाब को इस दुख का और तकलीफ का एहसास है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग पंजाब के हैं जो ये जुल्म करते हैं। उन्होंने कहा मीडिया देख ले कि तीरा में जो तुम लोग अरबों खरबों के भांग चरस अफयून के कारोबार की बकवासियात करते रहते थे, वहां इनके अरबों के लेन देन की बात कर रहे थे। तीरा की आवाम एक एक जोड़े और चंद कंबल और जानवरों के साथ टूटी फूटी गाड़ियों में आ रहे हैं। वो अरबों खरबों कहां गए? इस जंग की बुनियाद नस्ल परस्ती पर है, ये और कुछ नहीं, पश्तूनों की नस्ल कुशी है। कितनी तकलीफ वाली बात है जो वो कर रहे हैं। ये खुरम निशान साहब ने ये बात की, और ये शिकवा है, इसको शिकवे के तौर पे लें, इसको गद्दारी के तौर पे ना लें। आज बलूचिस्तान के लोग यही शिकवा कर रहे हैं, आज सिंध के लोग यही शिकवा कर रहे हैं, आज पंजाब के लोग यही शिकवा कर रहे हैं, आज कबायली और बलूची हर कोई ये शिकवा कर रहा है। आज आपके आजाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी यही शिकवा कर रहे हैं। सारे के सारे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से तंग है कि यार उन्होंने नाक में दम किया हुआ है, इनको बोलो अपना काम करें, हमें मुल्क चलाने दें, अपना सुकून का सांस लेने दें पाकिस्तान को। लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना फायदा देखना है, उन्हें तो देखना है कि वो किस तरह अपने लिए ज्यादा मुनाफा और ज्यादा ताकत इकट्ठी कर सकते हैं। आसिम मुनीर साहब से ना एक गलती हुई बहुत बड़ी। ये एक नौजवान का मैं क्लिप सुन रहा था, वहां से मुझे ये आइडिया है कि मुझे भी ये बात करनी चाहिए। वो बड़ी शानदार बात की उस नौजवान ने। बहुत सारे लोग क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म को सुनते हैं तो मुझे लगा कि उस नौजवान की बात सब तक पहुंचनी चाहिए, और अल्फाज शायद मेरे होंगे लेकिन उसने जबरदस्त बात की है, शानदार। देखिए आसिम मुनीर साहब ने ना गलत आदमी पकड़ लिया। इससे पहले भी फौज बंदे पकड़ती थी, लेकिन इस दफा आपने गलत आदमी पकड़ लिया। आपको लगा अब इसको पकड़ेंगे और आपकी जान छूट जाएगी, वो माफिया मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, वो आपको ये कहेगा मेरी जान छोड़ दें। नहीं, ये नहीं हुआ ना। अब आप उसको नहीं छोड़ते तो अवाम आपको नहीं छोड़ेगी, और अगर आप उसे छोड़ते हैं तो आपको लगता है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो मुल्क तो ऐसे नहीं चलेगा ना अवाम चलेगी ना मुल्क चलेगा। तो आप उसे छोड़ते हैं तो फिर फंस जाते हैं, नहीं छोड़ते तो फिर फंस जाते हैं। किस किस्म की बला के साथ आपने पंगा ले लिया? ऐसा आदमी पकड़ा है कि अंदर वाले पनाह मांग रहे हैं, बाहर वाले दुआ मांग रहे हैं, और वो वर्जिश का सामान मांग रहा है। दो उसको डंबल, वर्जिश का सामान, ताकि वो अंदर अपना टाइम गुजारे। इमरान खान को जेल में बंद करने वालों ने, इमरान खान ने एक बात कही थी हमें, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जिन लोगों ने और सुनी थी वो इसकी गवाही भी दे सकते हैं। इमरान खान ने कहा था कि इनके पास सिर्फ यहां तक का प्लान है कि ये मुझे पकड़ लेंगे, उसके बाद इन्हें नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है। तो वो मुझे भी लगा उस वक्त शायद तब तो काम ही खत्म हो गया जब इमरान खान को पकड़ लिया। इमरान खान ने कहा नहीं, इनके प्लान की जो आखिरी लाइन है वो यही है कि ये मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि उसके बाद इनके साथ क्या होगा। और इमरान खान के पास बाकायदा पूरा प्लान था अपनी गिरफ्तारी के बाद, जिसको उसने एग्जीक्यूट करके दिखाया। बहरहाल प्लान तो सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत का होता है, अल्लाह का प्लान कुछ और था, इन्होंने तो सारा कुछ करके देख लिया। इस वक्त तो हालात ये हैं पाकिस्तान के कि सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है हमारे मुल्क में, यानी बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। देखिए पाकिस्तान में बिजली कम नहीं है,
बिजली बनाने की सलाहियत भी कम नहीं है। इन्होंने जो बिजली के कारखाने लगाए हुए हैं वो पाकिस्तान की जरूरियात से दुगने हैं, दुगने से भी ज्यादा है। यानी ये जितनी चाहे बिजली बना के आपको दे सकते हैं। 1 सेकंड की लोड शेडिंग पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है ये लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूं आपको। क्योंकि इनके लगाए हुए कारखाने जो इन्होंने लगाए वो इतने महंगे हैं, वो इतने महंगे पड़ रहे हैं पाकिस्तान को, और इनका मफाद इसमें है कि वो ना चलें। यानी ये बंद कारखानों को पैसा देते हैं, ये उन कारखानों को पैसा देते हैं जो बिजली नहीं बना रहे, लेकिन बिजली का बिल उनको दिया जा रहा है क्योंकि मुआहदा इस तरह का किया है इन्होंने। और अब अगर वो बिजली बनाते हैं, उनकी कैपेसिटी देखिए, झूठ बोला हुआ है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे बिजली बनाने की कैपेसिटी फर्ज करें 10 मेगावाट है ना, तो उनको 100 मेगावाट का दे दिया। अब ना वो 10 बनाते हैं ना 100 बनाते हैं। कई ऐसी जगह जिन्होंने 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई और उन्होंने पाकिस्तानियों के अरबों रुपए वसूल किए हैं। ये नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इस कौम के साथ ज्यादती और जुल्म किया है। आज वो कारखाने बिजली बना नहीं रहे, उनको बिल फिर भी जा रहे हैं क्योंकि आपके दरियाओं के अंदर पानी कम हो गया, आपके डैमों के अंदर पानी कम हो गया, आपकी पन बिजली जो है वो बनने की सलाहियत कम हो गई, लिहाजा पाकिस्तान में लोड शेडिंग शुरू हो गई। और बेशर्मो आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इजाफी डबल से ज्यादा बिजली के कारखाने लगाए थे। कहां है वो बिजली? बिल तो लोगों से आप ले रहे हैं, उन कारखानों के नाम के ऊपर इजाफी बिल ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं। और अब जब उन कारखानों को चलाने की बारी आई है तो जी क्योंकि पानी से बिजली नहीं बन रही, हम इनको नहीं चला रहे। क्यों? क्यों भाई? पूरा साल आप उनके लिए हमसे पैसे लेते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी हुई है, पाकिस्तान के साथ फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे ऐसे बिजली बनाने वाले कारखाने इन्होंने लगाए आईपीपीज जिन्होंने बिजली बनाई नहीं, और बनाई तो बहुत थोड़ी बनाई। उनकी कैपेसिटी फर्ज करें 10 थी तो इन्होंने 100 लिखी। वो 100 यूनिट के हिसाब से पैसे लेते रहे, हालांकि वो 10 यूनिट बनाते रहे। मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूं। और आज जब बनानी पड़ेगी बिजली उनको, तो वो बनाने के काबिल ही नहीं है, उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है। लिहाजा जनाब लोड शेडिंग शुरू कर दी है इन्होंने। इतनी महंगी बिजली फिर भी लोड शेडिंग, और कैपेसिटी इन्होंने लिखी हुई कुछ और है, पीछे कुछ और है। ये कौम को चूना लगाया इन लोगों ने, और ये कमीशने खा गए सारे फ्रॉडिये मिलजुल के। तो ये जनाब सर्दियों के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, अंदाजा करें आप। पीपल पार्टी ने नाज़रीन एक बड़ा जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया, आपके सामने रखते हैं। ये 2 तस्वीर आप देखें। पहले ये एक तस्वीर देखें, इसमें सुहेल अफरीदी खड़े, इनके साथ चंद सिक्योरिटी के लोग खड़े, ये अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े हैं, इनके पैरों में अजरक पड़ी हुई है। खेला ना सिंध कार्ड बेशर्मों ने दोबारा, सारी जिंदगी सिंध कार्ड खेला, सिंधु कार्ड खेला, हम सिंध कार्ड खेलेंगे, नस्ल परस्ती, हर तोहम परस्ती, पता नहीं क्या क्या कार्ड ये खेलते हैं घटिया लोग। ये एडिटेड तस्वीर है, इसमें नहीं है ये अजरक पैरों में। ये देखें अगली तस्वीर आप, ये असल तस्वीर है, इसको आप देखें, ये देखें, ये पैरों में उनके फूल पड़े हुए हैं। ये असल तस्वीर उसी जगह पे, सारा फ्रेम वही का वही है, हर चीज वैसे ही है। पैरों में उन्होंने अजरक एडिट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डाल दी और प्रोपेगेंडा कर दी, हमारी अजरक पैरों में डाल दी। हद हो गई यार आप लोगों की, अजरक पैरों में डाल दी। भाई ये फूल पड़े हुए हैं पैरों के अंदर। सिंध का पानी जब जरदारी ने बेचा तब आपको कोई परवाह नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, और ना कोई पूछेगा उनसे, क्योंकि बाप का माल है, बेच दो, बांट दो। अब नाज़रीन एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बड़े लंबे अरसे से चल रही थी, अब तो जीशान अजीज साहब का अल्लाह ताला भला करे, उन्होंने तो सारा ही कट्टा खोल के सामने रख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि इंजीनियर साहब के लोगों ने और उन्होंने किस तरह इस जर्नलिस्ट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की। अब जरा वो देखें कि इंजीनियर साहब बहुत बुरी तरह फंस गए। किन चीजों में फंस गए? नंबर 1, जो उन्होंने मरियम नवाज की तारीफें की उस पर फंस गए कि जनाब वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़ा निखार के एक एक लफ्ज वो निशान ने निकाल के सुना दिया, जो गालम गलोच और घटिया जबान उन्होंने इस्तेमाल की है। अब बजाय इसके कि मरियम नवाज के ऊपर जो अपना स्टेटमेंट है उसको डिफेंड करते, कहते जी फलां भी ऐसे बोलता है, इमरान खान भी ऐसे बोलता है। कभी यार इतने घटिया अल्फाज तो कभी इस्तेमाल नहीं किए जो मरियम नवाज ने इस्तेमाल किए और उसके सोशल मीडिया ने इस्तेमाल किए। और जो लोग गंदी माँ बहन की गालियां देने वाले घटिया तरीन लोग हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनको अपने साथ खड़ा करते हैं, उनको अपने साथ शामिल करते हैं। जो बंदा बरतानिया में औरतों को गालियां देता था उनको बुला के इनको वजीर लगा देते हैं। ये जनाब इनके हालात हैं। फिर दूसरा जनाब सीसीडी के बारे में इन्होंने बड़ी गेम उठा दी थी कि कोई रेप नहीं हुआ, कोई ज्यादती का वाकया नहीं हुआ, खवातीन बड़ी महफूज हो गई हैं, नेफे में पिस्तौल चल रहे, बड़े खुश थे वो, मावराए अदालत कत्ल हो रहे, बड़े खुश थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे। उसने कहा जी बताएं आप मावराए अदालत कत्ल को दुरुस्त समझते हैं? फंसा दिया थी शान ने, वहां पे भी मुकर के कहते नहीं नहीं वो गलत है। तो कौन कौन सी चीज को वो अपनी गलत तस्लीम करेंगे?
फिर तहरीके लब्बैक की जबरी गुमशुदगियों वगैरह पे और कत्ले आम पे हार्ड स्टेट पे बड़े खुश थे। तो अब बताएं ना कि तहरीके लब्बैक की क़यादत किधर है? क्या उन्हें जबरी तौर पे लापता नहीं किया एजेंसियों ने? बोले ना उसके ऊपर, आवाज उठाएं, क्यों नहीं उठा रहे आप तो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनते हैं, तो निकले बाहर, अपनी एकेडमी से बाहर निकले, एहतजाज करें, खड़े हो लोगों के साथ, कुतबे हाथ में लेकर खड़े हो, रोला डालें, कहें आपके जनाब जबरी गुमशुदगी हुई है, रिजवी बरादरान की उनको छुड़ा के लाओ। क्यों नहीं आप कर रहे? आवाज उठाए ना। हम तो हर जगह आवाज उठा रहे हैं, हर जगह रोला डाल रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी हम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बदतरीन मुखालिफों के साथ खड़ी हो गई कि नहीं यार जबरी गुमशुदगी है, लेकिन ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नहीं खड़े हुए, ये ज़ीशान ने इनको एक्सपोज करके रख दिया। फिर जो कत्लेआम हुआ वहां पे मुरीदके में, उसके ऊपर इनकी जबान बिल्कुल बंद थी, पहले वहां पे भी फंस गए। फिर इन्होंने कहा जी 2014 के धरने में मैं इमरान खान को पहचान गया था, इमरान खान को, तो उस पर क्योंकि मेरे साथ ही बड़ा टाइम गुजारा है, बिल्कुल भाइयों की तरह है ज़ीशान, छोटे भाइयों की तरह, मुझे बहुत प्यार है ज़ीशान से। तो ज़ीशान को ये पता था कि ये मेरे से राब्ता करते रहे और मेरे से कोशिश करते रहे 2019 में 2020 में कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दें। मैं जरा बात खोल भी देता हूं क्योंकि ज़ीशान ने इनको ये आगे से मुंह पे जवाब दे दिया, तो मैं आपको खोल देता हूं बात कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुझे कई दफा राब्ता करके ये रिक्वेस्ट की कि मेरी इमरान खान से आप मुलाकात करवा दें इमरान साहब। तो मैंने उन्हें कहा जी कि वो वजीर आज़म है पाकिस्तान का, मैं आपको कहां से मिलवाऊं? मैं आपकी उनके स्टाफ के साथ बात करवा देता हूं और वो फिर आपकी मुलाकात अरेंज करवा देंगे अगर उनको मुनासिब लगेगा। तो ये मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था। दूसरा, इंजीनियर साहब और उनके लोग बहुत सारे लोगों से राब्ता कर रहे थे, मेरे से भी किया था कि हमें पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए। उस वक्त जब इनके ऊपर एक हमला हो गया था कातलाना, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, तो मैंने तो खुद से इनको फोन करके ऑफर किया था कि जी मैं अपनी सिक्योरिटी, मेरे पास है सिक्योरिटी के लोग, कुछ अच्छे बाएतमाद लोग हैं, तो मैं आपके पास भेज देता हूं, इंजीनियर साहब आपकी सिक्योरिटी का फौरी बंदोबस्त कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी मुझे पुलिस की सिक्योरिटी के लिए वो बार बार कह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा जी मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं, बातचीत करता हूं, लेकिन पता नहीं मुझे उसमें क्या हुआ। लेकिन मैंने उन्हें अपनी ऑफर दी थी कि जनाब मैं सिक्योरिटी आपको दे देता हूं, लेकिन इनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि इनको कोई एजेंसियों की तरफ से या कोई ऐसे कोई मदद मिले। तो मैं तो अब उतना वो मेरा था भी नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं अपना काम करूं या ये काम करूं। तो इनको वजीर आजम से भी मिलना था, हालांकि 2014 में इनको लगता है इमरान खान बहुत बुरा आदमी है, 2019 में ये मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवा दो, और ये कह रहे थे इमरान खान का मैं बहुत फायदा करूंगा, और उस वक्त ये इमरान खान की बहुत तारीफें भी कर रहे थे। फिर नाजरीन एक और इन्होंने सवाल फीड कर दिए पकड़ के ज़ीशान को, ये कैसे बेवकूफ लोग हैं। यानी ये ज़ीशान से चाहते हैं कि इमरान खान की निजी जिंदगी के ऊपर घटिया तरीन जो कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले सवाल हैं वो पूछो हमसे, फिर कब्रों पे सजदों वाले सवाल पूछो हमसे, इमरान खान से जोड़ो उनको। ये मिर्जा साहब की और उनकी टीम की ख्वाहिशें आप चेक करें। ज़ीशान ने पकड़ के मुंह पे रख दिया कि जनाब आप ये ख्वाहिशें कर रहे थे। अब मुझे एक और बात भी पता चली है कि सिर्फ ये नहीं है, कुछ और भी जर्नलिस्ट हैं हमारे, और मुझे उनके थ्रू ये बात पता चली, उनकी टीम के थ्रू, कि उनको बाकायदा इंजीनियर साहब सवालात लिखवाते रहे हैं मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यू से पहले, खास तौर पे मजहबी शख्सियात। एक का तो मैं नाम भी ले लेता हूं, मौलाना तारिक जमील साहब या मुफ्ती तारिक साहब हैं, और कुछ और लोग हैं। इनके जो इंटरव्यूज थे उनसे पहले ये बाकायदा सवालात लिखवाते थे, सवाल लिखो, इनसे ये भी पूछो, इनसे ये भी पूछो, इनसे ये भी पूछो। अंदाजा करें आप कैसा प्रोपेगेंडा करने वाला शख्स है, और हम इन्हें क्या समझते थे। फिर इन्होंने एक और झूठ बोला, वो भी पकड़ा गया। अरशाद भट्टी को कहते हैं जनाब के मैंने खत लिख के अपने कारकुनों को मना किया कि बाहर नहीं निकलना, यानी अपने स्टूडेंट्स को मैंने मना किया, वरना लाखों मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो ये वो। तो अरशाद भट्टी साहब मान गए। ज़ीशान ने कहा जी खत दिखा दें, कहते जी खत तो नहीं लिखा, मुकर गए। खत दिखाओ यार, जी हाँ तो नहीं है, नहीं कहाँ है, किसी के पास है, 50 बंदे खड़े हैं, किसी को बोले दिखा दे, किसी के फोन में होगा, नहीं जी वो नहीं लिखा। देखें कैसा झूठ बोला, एक बंदे को कहा मैंने खत लिखा, दूसरे को कहा जी मैंने नहीं लिखा। फिर जनाब इन्होंने बाबों के खिलाफ हमेशा बयानियां बनाया, लेकिन जब पकड़े गए तो खुद बाबा बन गए।